Hello everyone, welcome to Management Gyanamrit. Today we'll be doing Theories of International Trade Part 2. In Part 1 we have so far discussed what is mercantilism, zero sum game, classical theories, positive sum game and negative sum game. Today we'll proceed further with absolute advantage and comparative advantage. Please do like, share and subscribe to Management Gyanamrit by Soumya Agrawal. Theory of absolute advantage, an economic concept that describes the ability of the country or individual or a company to produce a good or service more efficiently than its competitor. It means when a country is able to produce more of something than another country using same amount of resources. जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री की कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू, उसे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी. इसमें ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, दो कमोडिटीज़ के बीच में ट्रेड होता है और फ्री ट्रेड एग्जिस्ट करता है बिटवीन द कंट्रीज़. मीन्स देयर विल बी नो टेरिफ्स और बैरियर्स. द ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. सिर्फ लेबर को कंसिडर कराता है एज अ यूनिट फॉर प्रोडक्शन. ओके, सो नाउ टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ दिस, if India can produce 10 units of wheat using 1 unit of labor, but China can produce 5 units of wheat using 1 unit of labor, it means who is having advantage? It's India. एक यूनिट ऑफ लेबर से 10 यूनिट ऑफ wheat प्रोड्यूस कर रहा है. India produces 6 unit of rice using 1 unit of labor. China produces 10 unit of rice using 1 unit of labor. Here, एक यूनिट ऑफ लेबर से चाइना 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, whereas India is producing just 6 units. तो किसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है? इन केस ऑफ राइस चाइना का है और इन केस ऑफ इंडिया इट इज़ फॉर वीट. वीट में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है सेम 1 यूनिट ऑफ लेबर पे. तो एब्सोल्यूट एडवांटेज किस केस में है कि अगर हम चाइना से राइस करवाएं और इंडिया से वीट कराएं तो हमारी कंट्री मोर एफिशिएंट होगी, बिकॉज द यूज़ ऑफ यूनिट ऑफ लेबर इज जस्ट वन. ग्राफ देखें, ग्राफ में हम समझ सकते हैं कि व्हेन 20 units are being produced by country A and 15 units being produced by country B, that is absolute advantage theory. जो जिस चीज़ में efficient है वो उस चीज़ में absolute advantage hold करता है using same amount of resources. इसका मतलब है अगर कोई भी इस थ्योरी का ओवरऑल व्यू ये है कि जो कंट्री जिस चीज़ में एफिशिएंट है वो चीज़ प्रोड्यूस करती है और उस चीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज होल्ड करती है, राइट? तो उसके लिए वही कमोडिटी प्रोड्यूस करना ज़्यादा बेहतर है जिससे उसका कम यूनिट यूज़ हो और मैक्सिमम आउटपुट फेच हो. Now coming up with the criticism, the theory did not takes into account multilateral trade. मतलब the trade exists between two countries. एक तो ये criticism है, ठीक है. The absolute advantage theory also assumes free trade exists between the countries. Free trade exist नहीं कर सकता कभी भी. There are certain barriers to trade. ठीक है. So these are the two criticism to this theory. Now comparing it with the David Ricardo's theory of comparative advantage. Theory of comparative advantage is about the theory of comparative advantage is an economic model that explains how country can benefit from international trade by specializing in what they produce more efficiently. Comparative advantage को समझने के लिए let's take an example. If India is able to produce both wheat and rice cheaper than China. अब इंडिया दोनों ही चीज़ चीपर प्रोड्यूस कर रही है चाइना से. अब हम कैसे समझेंगे कि कैसे किसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स the cost of sacrificing second best alternative, right? The cost of sacrificing second best alternative can be explained better with the help of an example. Ram has 5,000 rupees with him. 5,000 रुपये है उसके पास और दो choices है. वो ये 5,000 रुपये either he can invest in fixed deposit holding 7% interest or can deposit in mutual funds holding more than 10% interest. क्या करेगा राम? What will Ram do? He will prefer second option over the first option, right? That will yield him more interest. मतलब investing in mutual funds. The opportunity foregone to avail the benefit of the second option is the opportunity cost. मतलब अब जो 7% interest वाली जो opportunity foregone हुई है, मतलब जिसको उसने नहीं चूज़ किया है, वो होती है opportunity cost. क्योंकि उसने 10% वाले को चूज़ किया. जितनी कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है उतना वो पर्सन एडवांटेज में होता है. अगर फॉर एग्जांपल वो ऑप्शन ए चूज़ कर लेता कि वो
फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेगा तो उसका मतलब हो गया उसने बहुत अपना बेनिफिट रिड्यूस कर लिया और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, राइट? तो हमेशा वही चीज़ चूज़ की जाती है जिसमें उसको एडवांटेज हो, ठीक है? दिस इज कंपैरेटिव एडवांटेज। सिमिलर इज विद द कॉन्सेप्ट। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कंट्री वो चीज़ यूज़ करेगी या वो चीज़ चूज़ करेगी प्रोड्यूस करना जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी बहुत कम आ रही हो, ठीक है? तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी वीट में प्रोड्यूस करने में कम आ रही है तो वो वीट प्रोड्यूस करेगी। इफ़ राइस प्रोड्यूस कम करने में कम आ रही है तो राइस प्रोड्यूस करेगी, जिसमें उसका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा फ्रॉम द अदर कंट्री। वो कॉमोडिटी कंट्री प्रोड्यूस करेगी इन कंपैरेटिव एडवांटेज। तो अगर हम पूरी तरह से इसको समझें तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है कॉम्पिटिटर वो प्रोड्यूस करेगा जो वो बेटर प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन विद द सेकेंड कंट्री। बट कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कंट्री वो प्रोड्यूस करेगी जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लीस्ट आ रही है एज कंपैरिजन विद द सेकेंड कंट्री। इन शॉर्ट, एब्सोल्यूट एडवांटेज में लोएस्ट मार्जिनल कॉस्ट में कंट्री प्रोड्यूस करती है और कंपैरेटिव एडवांटेज में लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंट्री प्रोड्यूस करती है, राइट? दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑफ देम। So today's video we have learned about the absolute advantage and comparative advantage. In the next video we'll be proceeding further with the Heckscher and Olin theory. Please do like, share and subscribe to Management Gyanamrit with to stay tuned with the theories of international trade part 3. Thank you. Hope you enjoy learning.